So today we will start with the muscles, right? Discuss about the muscles of the forelimb. I will start with the muscles of thorax. You all are able to hear me? Yes, ma'am. Okay. So muscles of thorax आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, है ना? मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपायरेशन, मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन, ठीक है ना? देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ मसल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है ना? देयर इज ग्रुप ऑफ मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपिरेशन मूवमेंट एंड इंस्पिरेशन मूवमेंट. Slide is visible to all. So external intercostal, internal intercostal, levator costarum, retractor costarum और retractor costae भी बोलते हैं. Then rectus thoracis, transversus thoracis and diaphragm. So these are the 7 muscles present in thorax region responsible for respiratory movement, right? One by one we will discuss each, although there are other muscles are also, but these are the muscles responsible for respiration, ठीक है? Then thorax region में ये muscles count होती हैं, 7 muscles of thorax. So first we will start with the external intercostal. Intercostal, as its name, intercostal means they are these muscles situated in intercostal spaces, and the muscles are numbered, means as the number of intercostal spaces, the similar the number of external intercostal muscle, ठीक है ना? मतलब जो नंबर होगा वो सेम होगा दोनों का, right? Like in case of horse, there are 18 pair of ribs and 17 intercostal spaces. तो muscles भी कितनी होंगी? 17. मतलब because they are filling the space between the 2 ribs, ठीक है ना? So external intercostal, it fills up space between 2 ribs in bony part to the level of distal extremity of ribs. देखो ये चीज नोट करने वाली है that here it is written that only the bony part means the ribs are connected with the sternum with the help of costal cartilages, right? Each costal cartilage is making adjoined with the sternum. So here we see that external intercostal muscle is only filling the space between the 2 ribs, that is bony part, not the cartilaginous part. That means it does not extend in intercondyle spaces. Muscles only confined between the 2 ribs at its bony part, right? Then the fiber of this muscle are directed downward and backward. Downward and backward, क्योंकि दोनों ये आपको याद रखना है फाइबर का डायरेक्शन, क्योंकि इंटरनल इंटरकोस्टल में अपोजिट होगा डायरेक्शन का. So here the fiber are directed downward and backward, नीचे की तरफ होंगे और पीछे की तरफ to internal intercostal, ठीक है? Origin from the caudal border of the preceding rib and insertion cranial border. हाँ बोलो. अभी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल चल रहा है, ये दिख रही है आप लोग को कि नहीं? कुछ स्लाइड दिख ही नहीं रही है क्या? अच्छा एक मिनट.
एक्सटर्नल मैम इंटरकोस्टल दिख रही है। दिख रही है ना? हाँ, तो अभी इसी स्लाइड पे हैं हम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल पर ही हैं, ठीक है ना, इसी स्लाइड पर हैं। सो ओरिजिन फ्रॉम द कॉर्डल बॉर्डर ऑफ प्रीसीडिंग रिब। कॉर्डल बॉर्डर ऑफ प्रीसीडिंग रिब एक बार हम पढ़ लेते, फिर मैं डायग्राम बना के आप लोग को समझाती हूँ। पहले एक बार सारी मसल्स एक बार देख लेते हैं, फिर सारी मसल्स को एक साथ ड्रॉ करके आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे। कॉर्डल बॉर्डर ऑफ प्रीसीडिंग रिब, origin and insertion on cranial border of succeeding rib. Preceding means अगर rib number 1 and rib number 2, rib number 1 and rib number 2 has first intercostal space, मतलब rib number 1 और 2 के बीच का जो space होगा that is the first intercostal space. So the origin of the external intercostal is from the and insertion will be on cranial border of second rib. So this is how in each intercostal spaces we see that the origin of muscle will take place from the caudal border and the insertion will be on cranial border of succeeding rib, cranial border and lateral surface of succeeding rib. Ab what is the action of this muscle? This muscle assists in inspiration. तो जैसा नाम है उसके अपोजिट इसका एक्शन है, याद रखना है। नाम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है बट इट डू नॉट हेल्प इन एक्सपिरेशन, इट हेल्प इन इंस्पिरेशन। सो यू मस्ट रिमेंबर नेम के अपोजिट इसका एक्शन होगा, ठीक है। एंड ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई बाय इंटरकोस्टल आर्टरी एंड नर्व। देन सेकंड मसल इज इंटरनल इंटरकोस्टल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल extending to the entire length of the rib including the intercondyle space. अब ये देखो ये अलग हो गया, हमने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल केवल कहाँ पढ़ा था? Only between the bony part of the ribs, but this muscle internal will be extended up to the level of intercondyle spaces also, right? The fiber of this muscle are directed downward and forward, मतलब just opposite है, नीचे की तरफ तो है डायरेक्शन फाइबर का, लेकिन किस तरफ है? आगे की तरफ है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में कहा था? पीछे की तरफ था, ठीक है। और दिस मसल विल लाइज इनर टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल स्पेस, मतलब जैसे हम खोलेंगे बॉडी को तो रिब्स जैसे रिब्स एक्सपोज होगा, रिब्स एक्सपोज हुआ, देन वी कैन सी दैट व्हेन वी रिमूव द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल देन वी कैन सी द इंटरनल इंटरकोस्टल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल बाहर होगी, इंटरनल इंटरकोस्टल उसके इनर एस्पेक्ट पे होगा, ठीक है। Origin from cranial border of succeeding rib, insertion on caudal border and cartilage of preceding rib. अभी preceding और succeeding का टर्म समझ लेना आप लोग। succeeding अगर दो रिब हैं, नंबर 1 और नंबर 2, तो नंबर 1 इज द preceding एंड नंबर 2 इज द succeeding, ठीक है, ये याद रखें, मतलब पहले। ये उल्टा है, देखना आप लोग, है ना, इसको उल्टा है क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का फाइबर का डायरेक्शन कहाँ था? बैकवर्ड था और डाउनवर्ड था। यहाँ पर फाइबर का डायरेक्शन कैसा है? डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड है। तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? क्रेनियल बॉर्डर ऑफ सक्सीडिंग रिब, मतलब अगर 1 और 2 रिब का फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है देन द ओरिजिन विल बी फ्रॉम द क्रेनियल बॉर्डर ऑफ द सेकंड रिब एंड इंसर्शन विल बी ऑन कॉर्डल बॉर्डर ऑफ प्रीसीडिंग रिब। तो उल्टा है, यहाँ पर ओरिजिन और इंसर्शन एकदम उल्टा है जैसा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का है, ठीक है ना। देन एक्शन की बात करेंगे। देन नेम इज द इंटरनल इंटरकोस्टल, द एक्शन विल बी अपोजिट, एक्सपिरेशन। इंटरओसियस पार्ट हेल्प इन एक्सपिरेशन एंड इंटरकोंडल पार्ट असिस्ट इन इंस्पिरेशन, ये याद रखना है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ऑल्सो असिस्ट इन इंस्पिरेशन। तो ये एक्सक्लूसिवली हम नहीं बोल सकते हैं इसको, मतलब क्वेश्चंस थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा अगर एक्सक्लूसिवली पूछ लिया कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इज हेल्पफुल फॉर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, तो दोनों में हेल्पफुल है। हाउएवर द मेजर फंक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल इज एक्सपिरेशन, ठीक है। देन ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई बाय इंटरकोस्टल आर्टरी एंड इंटरकोस्टल नर्व। Then third muscle of thorax region is levator costernum. अगर कोई पूछे कितनी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होगी इन केस ऑफ ऑक्स, तो कितनी नाम लोगे? एनीवन?
If anyone asks about the number of internal intercostal muscle, 2 मैम. 2 इंटरनल इंटरकोस्टल होगी. यस मैम. कैसे 2 कैसे होगी? लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली. लेफ्ट साइड राइट साइड तो पेयर हो गया, ठीक है ना, मसल्स. Yes, ma'am. क्योंकि हाँ ये तो पेयर फॉर्म में होंगी ना. अगर नंबर पूछा जाए तो कितनी होंगी? अभी हमने क्या पढ़ा? ओरिजिन कहाँ पर और इंसर्शन कहाँ पढ़ा? हर एक इंटरकोस्टल स्पेस पे है ना ये मसल. इंटरनल इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इज लाइंग इन ईच इंटरकोस्टल स्पेस. मतलब ये नंबर में है ना. 12 इंटरकोस्टल स्पेसेस आर प्रेजेंट. 12 इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं कि नहीं होते? कितने इंटरकोस्टल स्पेस होंगे ऑक्स में? मैम 12 होंगे. और हमने देखा ये मसल कोई शीट के फॉर्म में, कोई पूरी बड़ी मसल तो है नहीं जो पूरे रिब्स को कवर कर रही है. अभी हमने ओरिजिन और इंसर्शन पढ़ा. फ्रॉम वन रिब देयर इज ओरिजिन, फ्रॉम अनदर रिब देयर इज इंसर्शन. मतलब 2 रिब के बीच का जो स्पेस है वहीं ओरिजिन और इंसर्शन हो जा रहा है. दैट मीन्स द मसल इज ऑफ 12 नंबर. सही है कि नहीं? यस मैम. है ना, 12 होगी ना मसल्स. ठीक है. Now, levator costarum. These muscles are present in the form of 10 to 11 small, flat, triangular, musculotendinous fasciculi occupy the exterior upper end of intercostal space. ठीक है. तो एक्चुअली ये जो मसल है levator costarum, ये छोटी सी मसल है जो कि ऊपर ऊपर रहेगी. ठीक है ना, ऊपर ऊपर इन द मींस नॉट कवरिंग द एंटायर इंटरकोस्टल स्पेस. स्मॉल, फ्लैट, ट्राइंगुलर, मस्कुलोटेंडिनस फेसिकुलाई. 10 से 11 फेसिकुलाई होंगे विच ऑक्युपाई द एक्सटीरियर अपर एंड ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस. मतलब इंटरकोस्टल स्पेस काफी वाइड और लॉन्ग स्पेस है ना, but this muscle will cover only the uppermost part of intercostal space. But origin is from transverse process of thoracic vertebrae and insertion on lateral surface and cranial border of upper end of succeeding rib. ठीक है. सक्सीडिंग रिब कैसे? मतलब जिस थोरेसिक वर्टिब्रे से ओरिजिन हो रहा है उसके आगे वाली जो रिब होगा उसकी लेटरल और क्रेनियल बॉर्डर पर इसका इंसर्शन होगा. ठीक है. तो लीवेटर कॉस्टेरम अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ डायग्राम बना के आप लोग को. सो लीवेटर कॉस्टेरम एक्चुअली इट ऑक्युपाइज द एक्सटीरियर अपर एंड ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस. तो थर्ड मसल इज लीवेटर कॉस्टेरम. फोर्थ मसल इज रिट्रैक्टर कॉस्टेरम. तो रिट्रैक्टर कॉस्टेरम इज अ सिंगल मसल, एक मसल है. मतलब पेयर तो होगी क्योंकि जो ये इसमें डुप्लीकेशन है, जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड भी आपको सिमेट्री मिलने वाली है. लेकिन यहाँ भी हम एक मतलब पढ़ते हैं तब ये नहीं पढ़ते पेयर. मतलब ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि दोनों साइड एक जैसा है. ठीक है. तो रिट्रैक्टर कॉस्टेरम स्मॉल ट्रायंगुलर मसल लाइज बिहाइंड द लास्ट रिब. ठीक है. And it is chiefly under the cover of obliquus abdominis externus and serratus dorsalis posticus. अब ये मसल्स के भी थोड़े थोड़े नाम आप लोगों को पता होने चाहिए. obliquus abdominis externus तो हमने बताया था, थोड़ा नाम लिया था उस समय भी जब हम एब्डोमिनल मसल्स पढ़ रहे थे. और एक है serratus dorsalis posticus. तो serratus ventralis तो पढ़ा होगा जब आपने स्कैपुला पढ़ा होगा. serratus cervicis and serratus thoracis ventralis पढ़ा था. स्कैपुला जब पढ़ा था सेरेटस मसल का नाम पढ़ा था. मीडियल एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला देयर इज अटैचमेंट ऑफ सेरेटस सर्वाइसिस. यस मैम. पढ़ा होगा है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक दूसरी मसल है सेरेटस डॉर्सैलिस. वो सेरेटस वेंट्रालिस थी, ये सेरेटस डॉर्सैलिस है. तो अगर आप डायग्राम भी देखोगे तो उसमें भी आपको बुक में सेरेटस डॉर्सैलिस टू मसल्स आर देयर, एंटिकस एंड पोस्टिकस. तो पोस्टिकस पीछे की तरफ होगा एंड मसल्स क्या लेयर में होती है. जब हम एक मसल को रिमूव करेंगे तब दूसरी मसल दिखती है ना. सो इसीलिए
हर एक मसल को आइडेंटिफाई करने के लिए लेयर बाय लेयर मसल्स को सेपरेट किया जाता है. So retractor costarum is chiefly under the cover of obliquus abdominis externus and serratus dorsalis posticus. Its origin is from the transverse process of first 2 or 3 lumbar vertebrae and lumbar fascia, and insertion is on caudal border of last rib. ठीक है, जैसे इसका नाम है रिट्रैक्टर कोस्टे, मतलब ये रिट्रैक्ट करेगी किसको? लास्ट रिब को रिट्रैक्ट करेगी. मतलब इसका एक्शन केवल लास्ट रिब पे है, बाकी रिब्स पे नहीं है. आपने ऑब्जर्व किया कि इसका ओरिजिन कहाँ से है? ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ फर्स्ट 2 और 3 लंबार वर्टिब्री, वहां से ओरिजिन है. एंड द इंसर्शन इज ऑन कॉर्डल बॉर्डर ऑफ लास्ट. दिस रिट्रैक्टर कोस्टेरम, रिट्रैक्ट करना किसी चीज को, रिट्रैक्ट करना मतलब अपनी तरफ खींचना. रिट्रैक्टर कोस्टेरम मसल विल रिट्रैक्ट द लास्ट रिब एंड असिस्ट इन इंस्पिरेशन. ये क्या करेगी कि कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाएगी, थोरेसिक कैविटी का पीछे की तरफ, मतलब लास्ट रिब खींचेगी तो क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ कैविटी रिब केज विल इंक्रीज. ठीक है ना, इट असिस्ट इन इंस्पिरेशन. देन रेक्टस थोरेसिस, दो मसल्स का नाम अभी आने वाला है, रेक्टस थोरेसिस और ट्रांसवर्सिस थोरेसिस. रेक्टस थोरेसिस मसल प्रेजेंट बिलो द डीप पेक्टोरल मसल. अब ब्रिस्केट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्रिस्केट एरिया पढ़ा होगा, है ना, तब पढ़ा होगा कि पेक्टोरल मसल्स कंट्रीब्यूट इन दिस. ठीक है, तो स्टर्नम के जो नीचे जो बाहर वाला एरिया है, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ स्टर्नम कवर्ड बाय पेक्टोरल मसल. तो रेक्टस थोरेसिस प्रेजेंट बिलो द डीप पेक्टोरल. ठीक है, डीप पेक्टोरल के भी अंदर होगा रेक्टस थोरेसिस मसल. दिस इज थिन मसल डायरेक्टेड ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड. Origin is from the lateral surface of rib, first 3 rib below the scalenus muscle. ठीक है ना, and the insertion is on costal cartilages of 3rd, 4th, 5th rib and adjacent part of sternum. ठीक है, तो rectus thoracis muscle is actually lying up to the level of 5th rib, मतलब आगे आगे इस मसल का जो कोर्स है, पीछे साइड नहीं है, और ये नीचे की तरफ होगा बिकॉज इट इज कवरिंग द स्टर्नम. ये स्टर्नम वाले एरिया में मिलेगा इसका जो एक्सपांशन है. ठीक है, सो द मसल इज लाइंग डीप टू द डीप पेक्टोरल, बिलो द डीप पेक्टोरल मसल, एंड इज द थिन मसल डायरेक्टेड ऑब्लिकली. ओरिजिन हमने देख ही लिया है, लेटरल सरफेस ऑफ फर्स्ट 3 रिब्स, और इंसर्शन कहां पर होगा? Coastal surface cartilages of 3rd, 4th and 5th rib and adjacent part of sternum. Rectus thoracis muscle assist in inspiration, मतलब ये भी वॉल्यूम बढ़ाएगी थोरेसिक कैविटी का. It assist in inspiration. Then 6th muscle is transversus thoracis. Transversus thoracis is a flat muscle situated on the thoracic surface of sternum. थोरेसिक सरफेस ऑफ स्टर्नम किसको बोलेंगे? द सरफेस ऑफ द स्टर्नम फेसिंग टुवर्ड्स द थोरेसिक कैविटी, मतलब अंदर की तरफ होगी ये मसल. ये मसल हमें तब दिख पाएगा जब हम थोरेसिक कैविटी को ओपन करेंगे, क्योंकि ये अंदर की तरफ है ये मसल. ठीक है, सो दिस मसल इज लाइंग ऑन थोरेसिक सरफेस ऑफ स्टर्नम. ओरिजिन फ्रॉम द स्टर्नल लिगामेंट एंड इंसर्शन ऑन कार्टिलेज ऑफ रिब्स फ्रॉम 3rd to 8th rib. ठीक है, एंड रेक्टस थोरेसिस का इन्वॉल्वमेंट क्या था? इंस्पिरेशन. ट्रांसवर्स थोरेसिस असिस्ट इन एक्सपिरेशन. ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है. मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन पूछ ली जाती है कई बार. ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए ये लिया है, बाकी मसल्स बहुत सारी छोड़ भी दी है. जो इंपॉर्टेंट मसल्स है वही हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. मसल इज द डायफ्राम. तो डायफ्राम बताती हूँ मैं आप लोग को. अब मैं सारी मसल्स आप लोग को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ बोर्ड पर. बोर्ड दिख रहा है सभी को? This is the, here is the rib, here is the sternum. स्टर्नम थोड़ा और नीचे बनाते, कोस्टल कार्टिलेज बनानी है. These are the coastal cartilages which connect the rib to the sternum. यहाँ से क्या है ये?
the other coastal cartilages. This is first rib, this is second rib, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगी क्या, thoracic vertebrae, ठीक है, to which this connected. This space is what? Intercostal space. External intercostal space मैंने बताया था, external intercostal muscle, it the fiber directed downward and backward, मतलब किस तरह डायरेक्शन है फाइबर्स का, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, दिस डायरेक्शन, नीचे की तरफ और पीछे की तरफ। डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फाइबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इज डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, बट इट डू नॉट कवर दिस स्पेस। इंटरकॉन्डल स्पेस में ये मसल नहीं होगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन intercondyle space. The direction of fiber is downward and backward. That means origin is from preceding rib and insertion is on cranial border and lateral surface of succeeding rib. ये insertion होगा इसका। यहाँ से origin हुआ ना, फर्स्ट रिब का caudal border, और insertion कहाँ हो गया, सेकेंड रिब का cranial border। मतलब origin is from caudal border of preceding rib and insertion is on cranial border and lateral surface of succeeding rib. अब external intercostal बाहर की तरफ होगी। When we remove the external intercostal space, इसको हमने हटाएंगे, then we can see the internal intercostal muscle which lying inside to this. So internal intercostal muscle, the fiber will be directed opposite. अब यहाँ पर फाइबर डायरेक्शन है कैसे, ऐसे डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, like this. The direction of fiber will be there, downward and forward, and it also occupy the intercondyle space. Internal intercostal muscle also occupy intercondyle space. What does it mean? The origin is from the cranial border of succeeding rib and insertion is on caudal border and lateral surface of preceding rib. सही है ना? यहाँ से ओरिजिन होगा और इंसर्शन कहाँ पर होगा, प्रीसीडिंग रिब में होगा। तो इंटरनल इंटरकोस्टल अपोजिट हो गया, डायरेक्शन एज इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अपोजिट टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट मसल पढ़ा था क्या, लीवेटर पोस्टेरम पढ़ा था। लीवेटर पोस्टेरम मैंने पढ़ा था 10 to 11 मसल्स बंडल है, और ये मसल जो कहाँ पर है, एकदम ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ thoracic vertebrae and insertion on lateral surface and cranial border of upper end। तो यही ट्रांसफर प्रोसेस से, ये सपोज ये thoracic vertebra है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसवर्स प्रोसेस, यही के यही ऊपर के ऊपर ही ये मसल सिचुएटेड है, ऐसे ऊपर के ऊपर, और ये कम से कम 10 से 11 बंडल मिलेंगे हर एक ऊपर इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर। तो ये मसल में जो कंफाइनमेंट इज ओनली ऑन द अपर एंड। So this muscle is called levator posterum, right? Then after levator posterum, the fourth muscle is retractor costae. Retractor costae, suppose if we assume that this is the 13th rib, the last rib है, और here is the transverse process of lumbar vertebrae, first 2 to 3 lumbar vertebrae. The fiber will be coming from here. Origin is from the transverse process, the insertion of caudal border of last rib. Insertion is on caudal border of last rib. So this is retractor costae muscle. Then after rectus thoracis, transverse thoracis. Rectus thoracis and transverse thoracis दोनों मसल में याद रखना है। रेक्टस जो है बाहर की तरफ है, नीचे की तरफ है स्टर्नम की, और जो ट्रांसवर्स thoracis है, it is in the towards the inner surface of the sternum. You cannot see the transverse thoracis muscle without opening the thoracic cavity. जब आप thoracic cavity open करेंगे तो अंदर की तरफ sternum के inner side there will be transverse thoracis muscle। और आपने भी देखा भी था, दोनों का एक्शन अलग है, रेक्टस का अलग है और ट्रांसवर्सिस का अलग है। ट्रांसवर्सिस thoracis is lying on the inner aspect and it help in, किस में हेल्प कर रहा है ट्रांसवर्स thoracis, बताओ? Expiration. Transverse thoracis help in expiration, ठीक है ना।
इट हेल्प्स इन एक्सपिरेशन एंड रेक्टस थोरेसिस हेल्प्स इन इंस्पिरेशन। दोनों का जो एक्शन है वो अपोजिट है, रेक्टस एंड ट्रांसवर्सिस थोरेसिस। टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बड़े ध्यान से भी आपको सुनना है, समझना है, ठीक है। डायफ्राम एग्जाम में अकेला भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, एक पूरा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन डायफ्राम पे अकेला आ जाता है, ठीक। सो फर्स्ट if we see the diagram, एक्चुअली डायफ्राम को हम कैसे देख पाएंगे? डायफ्राम अगर बॉडी में है देन इट इज लाइक दिस डॉम शेप। अब हम इसका अगर पूरा व्यू देखना चाहें, होल व्यू ऑफ द डायफ्राम, ठीक है, तो इसको कैसे देख पाएंगे हम? ऐसे देख पाएंगे, ऐसे और ऐसे। ये पूरा ऐसे शीट है, ठीक है, ये ऐसे पूरा शीट है डायफ्राम। और अगर हम लेटरल साइड से देख रहे हैं तो हम इसको कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे, ठीक है। डायफ्राम एक्चुअली इज अ मस्कुलो-एपिन्यूरेटिक मसल, ठीक है, इट इज मस्कुलो-एपिन्यूरेटिक बोलते हैं। मस्कुलो-एपिन्यूरेटिक क्यों? Because the whole muscle, whole diaphragm is not fleshy. Some part of the diaphragm is fleshy and the central part of the diaphragm is aponeurotic. Aponeurotic का मतलब क्या होता है? फ्लैशी नहीं है। आपको लगेगा कि तो सिंपल शीट है, इसको मसल क्यों बोला हुआ है, ठीक है। However, the periphery of the diaphragm is fleshy and the central part is aponeurotic. If we see the attachment of diaphragm, then diaphragm is attached with the first 4 to 5 lumbar vertebrae, ठीक है ना। तो here actually the diaphragm is attached by lumbar vertebrae, यहाँ से, ठीक है। And there are two crura actually. Attachment of diaphragm with the lumbar vertebrae is through the crura. That the term crura is applied to that. Crura क्या है? Crura is the fleshy part of the diaphragm. मतलब right crura and left crura. Right crura and left crura. जिसमें से जो right crura है that is bigger than the left one. So if this one is the right and this one is the left, then इसका जो size होगा वो बड़ा होगा, ये left है। और जो right होगा that is attaching from the 4th to 5th lumbar vertebral body. यहाँ से इसका attachment start होगा। And the left crura is attached to the first and second lumbar. और जो right है वो 4th lumbar से आ रहा है, ठीक है। Right crura is this and left crura is this. तो ये जो part होगा डायफ्राम का, it is coming like this here, ऊपर से। ये एक डॉम शेप स्ट्रक्चर है। डायफ्राम इज अ डॉम लाइक पार्टीशन, यू नो ऑल। उसको आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं? आप इमेजिन करिए कि जैसे घर में तसला, तस्मा, जिसको जो भी बोलते हो, जिसपे ईटा गारट होते हैं, वो तसला बोलते हैं ना उसको। तो आप देखते हैं कॉन्केविटी इज टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी एंड कॉन्वेक्सिटी इज टुवर्ड्स थोरेसिक कैविटी, ठीक है। अब ये एक शीट है, एक चद्दर है, जिसको पूरी तरफ चारों तरफ से क्या है, उसको फिक्स किया हुआ है। और जो सेंटर पार्ट है वो कैसा है? ऐसे बल्जिंग है। और चारों तरफ से अटैचमेंट है। चारों तरफ से अटैचमेंट मतलब ऊपर से भी अटैचमेंट है, नीचे से भी अटैचमेंट है, दोनों तरफ रिब्स में भी अटैचमेंट है, ठीक है। तो ये आपको नोटिस करना है। तो डायफ्राम एक्सिस देखेंगे तो देयर आर, इट इज अटैच्ड विद द लंबार वर्टिब्रल बॉडी विद द हेल्प ऑफ क्रूरा, एंड देयर आर टू क्रूरा, राइट क्रूरा एंड लेफ्ट क्रूरा। द राइट क्रूरा is bigger than the left crura, and this right crura is circumscribed here, one opening here, बताएंगे बाद में, and here is actually between the right and left at the level of 13 thoracic vertebra there is gap, and through this opening there is passage of aorta. यहाँ पर at the level of 13 thoracic vertebra, the aorta is piercing or having the passage from the thoracic to abdominal. So this is the aortic hiatus. Aortic hiatus is lying at the level of 13 thoracic vertebra. Then here is the right crura is having the two part, two division, which
enclose an opening which is for the esophagus. Esophageal opening is present in the diaphragm, जिसको हमने esophageal hiatus बोला हुआ है. This esophageal hiatus is circumscribed by the right crura and it lying at the level of 8 thoracic vertebra. ये जो ओपनिंग होगी वो किस लेवल पे होगी? 8 thoracic vertebra के लेवल पे, ठीक है ना? And about it is 6 to 8 inches below the vertebral bodies, ठीक है? So ये देखिए आप diaphragm. Then the ventral part of this diaphragm is it is attached with the xiphoid cartilage of sternum. So this part of the diaphragm is attached with the xiphoid, this part with the crura, and the fleshy rim is attached with the 12th rib to the level of 8th rib. ठीक है ना? जो rim है, fleshy rim है, it is attached with the ribs also. ठीक है? तो एक बार पहले इसको देख लेते हैं, फिर दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ डायफ्राम में लिखा क्या है, सो दैट एक बार में आपको समझ में नहीं आएगी चीज, लेकिन 2-3 बार रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा. डायफ्राम इज अ ब्रॉड डोम शेप्ड अनपेयर्ड मसल. ठीक है ना? इज एन अनपेयर्ड मसल which form partition between thorax and abdominal cavity, directed downward and forward from lumbar vertebrae to xiphoid cartilage. Thoracic surface lined by pleura, abdominal surface lined by peritoneum. ये सब आपको पता है, ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. And a diaphragm is formed by the 3 parts, that is fleshy rim, aponeurotic center, and lumbar part, having 2 crura. There are 3 attachments: costal, sternal, and lumbar attachment. There are 3 attachment of diaphragm. Costal part attached in a straight line from last rib about a hand width above its middle to the junction of 8th rib with its cartilage and along the cartilage to sternum. देखो अभी लैंग्वेज बड़ी क्लिष्ट लग रही होगी, क्या कितनी क्लिष्ट लैंग्वेज है, कैसे डायफ्राम अटैच हो रहा है. तो आपको एक इमेजिन करना है कि एक चद्दर है और वो चद्दर को आप चढ़ाना शुरू कर रहे हो. आपके पास एक डिब्बा है, आप उस डिब्बे में चारों तरफ से आप उस शीट को फिक्स करना है और उस डिब्बे को 2 पार्ट में पार्टीशनिंग करना है, मतलब थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को. तो अब उस शीट को कैसे चढ़ाना शुरू करेंगे? जो कोस्टल पार्ट है, रिब से जो इसका अटैचमेंट हुआ डायफ्राम का, वो किस फॉर्म में होगा? एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा फ्रॉम लास्ट रिब. सबसे आखिरी वाली रिब होगी. और रिब क्या है? रिब तो बहुत बड़ी है, लेंथ उसकी काफी बड़ी लेंथ है. तो कहाँ? लास्ट रिब में. इन लास्ट रिब अबाउट अ हैंड विड्थ अबव इट्स मिडिल, जो मिडिल के एक हाथ ऊपर, ठीक है ना? मिडिल के एक हाथ हैंड विड्थ अबव इट इज अटैच्ड इन द लास्ट रिब. और कहा वो लास्ट रिब से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है? टू द जंक्शन ऑफ 8th रिब विथ इट्स कार्टिलेज, मतलब 8th कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन जहां पर है, एंड अलोंग द कार्टिलेज टू द स्टर्नम. याद करो आप लोग, 8th रिब कितनी रिब्स होती हैं? स्टर्नल रिब्स. ऑक्स में कितनी स्टर्नल रिब्स होती हैं? 8 पेयर्स है ना, 8 रिब्स आर स्टर्नल. ठीक है? और 8 पेयर्स वहां, उसके बाद क्या होता है? जिफॉइड शुरू होगा. तो एट द लेवल ऑफ 8th रिब द डायफ्राम इज अटैच्ड एंड देन टू द स्टर्नम. देन ये कहाँ? अलोंग द कार्टिलेज टू स्टर्नम. स्टर्नम का जो जिफॉइड कार्टिलेज है वहां पर ये रेस्ट करेगा डायफ्राम. ठीक है? देन so coastal part is attached from the 13th rib to the level of 8th rib. In 13th rib, just a hand width above the middle, at that part it is started, है ना? And then it is attached to the level of 8th costochondral cartilage and to the sternum. अभी बताया मैंने, है ना? जो डायफ्राम नीचे स्टर्नम से कहाँ पर अटैच है? इट इज अटैच्ड इन द जिफॉइड कार्टिलेज. ठीक है? नीचे से ये फिक्स किस पे होगा? जिफॉइड कार्टिलेज पे आकर फिक्स होगा डायफ्राम. ठीक है? देन लंबार पार्ट, अभी जैसी चर्चा हुई, मैंने अभी चर्चा की ना, द लंबार पार्ट. लंबार, एक तो ये लंबार से फिक्स है डायफ्राम, दैट इज ऑल्सो द फ्लैशी पार्ट ऑफ द डायफ्राम. क्रूरा जो क्या होते हैं? क्रूरा मस्कुलर पार्ट है. क्रूरा मतलब पिलर भी बोल सकते हैं या मोटा मस्कुलर पार्ट. देयर आर 2 क्रूरा या क्रश,
लेफ्ट क्रश एंड राइट क्रश। तो राइट इज लार्जर देन द लेफ्ट, अभी बताया मैंने, and the right one is divided into two part which circumscribe to form the opening hiatus esophageus, जो अभी मैंने बताया आपको कि right crura is bigger than left one and the right circumscribe opening for hiatus esophageus and then they unite below and spread into aponeurotic part, ठीक है ना। मतलब जो right crura है वो कहाँ आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है, up to the level of 8th rib बताया था मैंने, and then it become aponeurotic. तो right crura is attached to first 4 or 5 lumbar vertebrae, अभी बताया था मैंने, अभी बना हुआ डायग्राम में है ना, बना है ना। जो right crura है वो चौथी पांचवी वर्टिब्री से शुरू, लंबार वर्टिब्री से शुरू हो गया है and attached with the lumbar vertebrae by ventral longitudinal ligament, ठीक है, ventral longitudinal ligament by the vertebral bodies of 4th और 5th lumbar vertebrae. ये vertebral bodies से attach होगा, not with the transverse process, याद रखिएगा। The crura is attached with the vertebral bodies, ventral surface of vertebral bodies with the help of ventral longitudinal ligament. Then the left crus is क्या था? Yes, ma'am. कितना समझ में आया डायफ्राम? डायफ्राम इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, कोस्टल पार्ट, स्टर्नल पार्ट एंड लंबार पार्ट, ठीक है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्टर्नम। लंबार पार्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 crura, right crura and left crura. Right crura is larger than the left one. The right crura is larger and it started to attach from the 5th lumbar, मतलब पीछे से ही आगे की तरफ आ रहा है, मतलब 5th lumbar से अटैचमेंट है राइट crura का, इट इज बिगर, तो ज्यादा लंबार वर्टिब्रा को कवर करेगा राइट crura, ठीक है ना। इट इज अटैच फ्रॉम द 5th, 4th, 3rd, 2, 1 सबसे अटैच है। एंड द लेफ्ट crura इज स्मॉलर एंड इट अटैच विद द फर्स्ट एंड सेकंड लंबार वर्टिब्री, ठीक है। एंड बिटवीन द लेफ्ट crura एंड राइट crura देयर इज वन opening that is called aortic hiatus. Aortic hiatus is at the level of 13th thoracic vertebra. Through that there is passage of aorta, vena hemiazygus and cisterna chyli, ठीक है। Then I told you the right crura is larger and it again divided into 2. Right crura divided into 2. This right crura, it circumscribe opening that is called esophageal hiatus. And esophageal hiatus is lying left to the median plane at the level of 8th rib, ठीक है। At the level of 8th rib there is esophageal hiatus. Then foramen vena cava, foramen vena cava is present an inch below the esophageal hiatus and to the right, ठीक है। foramen vena cava will be present right to the median plane. Foramen vena cava will give passage to the which vessel? Vena cava. Caudal vena cava traverse from foramen vena cava from abdominal cavity and coming to the thoracic cavity, right? Esophageal hiatus give passage to the esophagus and vagus nerve. Then sternal part of the diaphragm is attached with the xiphoid cartilage. Costal part is attached, it is the fleshy rim of the diaphragm which is attached from 13th rib to the level of 8th rib, ठीक है ना। समझ में आया डायफ्राम की नहीं आया समझ में? डायफ्राम आया समझ में? ठीक है, एक बार आप पढ़िए, बुक से भी पढ़िए तो और आपको क्लियर होगा चीजें। डायग्राम में भी देखोगे आप बुक में तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, है ना। सो द मसल्स ऑफ थोरेक्स, नाउ इट इज कंप्लीटेड। देयर आर 7 मसल ऑफ रेस्पिरेशन। तो आपको सारी चीजें मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दी हैं। और एक यूजुअली डायफ्राम पूछ लेते हैं, ठीक है ना, डायफ्राम पूछ लिया जाता है तो उसको डायफ्राम को आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है। आई थिंक नाउ टाइम इज ओवर, नाउ आई एम एंडिंग माई क्लास। आज क्लास अच्छे से हो भी नहीं पाई नेटवर्क इश्यूज के कारण, इलेक्ट्रिसिटी बार बार कट डाउन हो रहा था। So tomorrow we will discuss the abdominal muscle, ठीक है, abdominal muscle and
जो भी मसल्स सब लंबार रीजन का जो भी मसल्स पढ़ाना है कल पूरा ये खत्म कर देंगे, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स के साथ। इंग्वाइनल कैनाल और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी भी लेनी है, तो वो कल पढ़ाऊंगी मैं, ठीक, ओके।